हेलो स्टूडेंट्स, असली लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਰਾਦਰ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਥ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਦੈਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਥੀਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ oilic acid molecule। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ oilic acid ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? why not any other acid? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ oilic acid ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਥੋੜਾ ਬਿਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਾਸਟ कोई प्रिंसीपल नहीं है, जस्ट तुसी बहुत छोटी क्लासेस तो पढ़ते आ रहे हो वॉल्यूम की हुंदा है। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये? वॉल्यूम किस दे इक्वल हुंदा है? लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, ते जे असी लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर लिए तो एक ही बनता है साडे कोल एरिया। एरिया इनटू हाइट। एरिया इंटू हाइट किस इक्वल आ गई? वॉल्यूम दे। ठीक है, तो इस रिलेशन नु असी यूज करांगे टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। इस तरह आएगा डायमीटर। डायमीटर बेसिकली की होएगा, आ मॉलिक्यूल है, डायमीटर की होएगा बेसिकली यदि हाइट। सो इथों हाइट किस दे इक्वल आ जाएगी? वॉल्यूम अपॉन एरिया। हाइट किस दे इक्वल आ जाएगी? इनू डिनोमिनेटर च ले आओ, वॉल्यूम अपॉन एरिया। सो जेड़ा ऑयलिक एसिड दा डायमीटर है मॉलिक्यूल दा वो किद्दां असी कैलकुलेट करना है? असी पहला वॉल्यूम कैलकुलेट करांगे, दैन असी एरिया कैलकुलेट करांगे, उन्हां नू डिवाइड करांगे तो साडे कोल जेड़ा हाइट है मॉलिक्यूल दी ओह आ जाएगी, मीनस डायमीटर है जेड़ा साडे कोल वो आ जाएगा ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल दा। हुण इस नू कैलकुलेट किवें करना है वो असी देखना है कि किस तरह असी ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल नू दा जेड़ा डायमीटर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सब तो पहला सानू ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल नू डाइल्यूट करना पएगा। डाइल्यूट मतलब कि ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल थिक है। ठीक, हुण अगर तुसी किसी थिक मटीरियल नू फ्लोर दे ऊपर गिराओ तो की होएगा? उहदी एक ड्रॉप बन जाती है। अगर तुसी ऑब्जर्व किया होए तो एक ड्रॉप, थिक ड्रॉप की फॉर्म दे विचों गिरेगा। ठीक है, बट असी की चाहते हैं? असी उहदा एरिया भी कैलकुलेट करना है तो उहदा वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। उहदे लई सानू की चाहिदा है कि जिहड़ा मॉलिक्यूल दा ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल है वह स्प्रैड हो जाए।
ਤਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਲੇਅਰ ਬਣੇਗੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਏ, 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਪੋਜ਼ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰੇਗੀ ਲੋਅਰ ਲੇਅਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ, ਆ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਟ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਨ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਫਾਰਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਹੀਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡ੍ਰੌਪ ਫਾਰਮ। ਡ੍ਰੌਪ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵੋਲਿਊਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਆ। ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਵੋਲਿਊਮ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ that will give you the height or we can say the diameter of the oilic acid molecule. Clear? So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਕੋਹਲ। ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 에ਅਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 1 ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ is dissolved in alcohol to make the solution
to make 20 cubic centimeter of solution. Means असी 1 cubic centimeter oilic acid लिया ते उसनू एल्कोहल दे अंदर डिजोल्व किया ताकि साडे कोल जिहड़ा टोटल सोल्यूशन है वो कितना बने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ मतलब की है कि इस सोल्यूशन दे विच कितना ऑयलिक एसिड है 1/20 क्यूबिक सेंटीमीटर। मीन्स अमाउंट ऑफ oilic acid in this solution is equal to this। अगेन की करना है, जो साडे कोल सोल्यूशन बन गया ठीक, मीन्स असी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड नू डिजोल्व करता अल्कोहल च, टोटल सोल्यूशन साडे कोल कितना आया 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस सोल्यूशन का फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लैके उसनू फिर अगेन अल्कोहल दे विच डिजोल्व करना है ताकि जो साडे कोल टोटल सोल्यूशन है वो कितना बन जाए 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल साडे कोल की आएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस सोल्यूशन contain oilic acid। कितना होएगा उसदे विच oilic acid 1/20 into 20 means 1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिंपल है, पहला असी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड नो डिजोल्व किया एल्कोहल दे अंदर, कितना टोटल सोल्यूशन बनाया 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसदे विच कितनी अमाउंट हुई ऑयलिक एसिड दी 1/20 क्योंकि 1 लिया सीगा ऑयलिक एसिड ते टोटल सोल्यूशन कितना है 20। हुन ये जो आ गया सोल्यूशन इस दे विच अगेन असी एल्कोहल एदा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया ते इस दे विच अगेन सोल्यूशन अल्कोहल पाके कितना बनाया 20। तो ओदे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे विच कितनी ऑयलिक एसिड दी अमाउंट होएगी 1/20 डिवाइड बाय 20 मीन्स 1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना। सो ये तो आ गया साडे कोल कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे विच सोल्यूशन दे विच कितना ऑयलिक एसिड है। अगला स्टेप की है, हुण साने इस सोल्यूशन दे विच वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 1 ड्रॉप का। मीन्स जो साडे कोल आउट लास्ट दे विच आ गया, असी चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करिए कि कितना वॉल्यूम है एक सिंगल ड्रॉप का। क्लीयर। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ है, सपोज करो तुसी सारिਆਂ ने केमिस्ट्री ਦੇ प्रैक्टिकल किते ने ब्यूरेट देखी है। ठीक, इस सोल्यूशन ਨੂੰ जो साडे कोल सोल्यूशन आ गया इस ਨੂੰ ब्यूरेट ਦੇ अंदर फिल करो ਤੇ ब्यूरेट ਦਾ ਮੂਰੋਂ कॉर्क हटा दो ताकि ये सोल्यूशन ड्रॉप वाइज गिरना शुरू करे। ਤਾਂ सपोज करो ਜਿਹੜਾ 100 ड्रॉप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫॉल कर रही ने, 100 ड्रॉप्स फॉल कर रही ने फॉर एवरी 10 ml सोल्यूशन दे लिए। 10 ml सोल्यूशन दे विचों 100 ड्रॉप्स ने जड़ियाँ वो फॉल कर रही ने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए 100 ड्रॉप्स। तो अगर असी एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो 1 सिंगल ड्रॉप के लिए कितना वॉल्यूम आ जाएगा 10/100। साडे कोल सोल्यूशन कितना है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितनियां ड्रॉप्स फॉल कीतियां, सपोज 100 ड्रॉप्स फॉल कीतियां, तो असी चाहते हाँ वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ड्रॉप। ठीक, तो सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आएगा, जिन्ना सोल्यूशन फॉल किया जिन्नियां ड्रॉप्स दे विच किया उन्हां दोनों नूं असी डिवाइड कर देंगे। तो 10/100 जो असी करांगे तो ये साडे कोल की आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 10/100। क्लियर। क्यूबिक सेंटीमीटर ये साडे कोल आ गया वॉल्यूम। हुण सपोज करो कि एदियां n ड्रॉप्स फॉल कर रही ने तो असी n ड्रॉप्स नू यूज़ कर लांगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लांगे एक सिंगल ड्रॉप का। तुसीं हुण अपने माइंड च की रखना है, एक तो आ चीज़ रखनी है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जिहड़ा सोल्यूशन है उहदे विच ऑयलिक एसिड कितना है
1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना है एक ड्रॉप का डिपेंड करेगा जितना तुसी सोल्यूशन लिया तो उहदे विच कितनियां ड्रॉप्स फॉल कर रही ने। हुण अगला स्टैप की है साडा, अगले स्टैप दे विच असीं ये देखांगे कि असीं एरिया किस तरह कैलकुलेट करना है, किवें असीं कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਲਓ, ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਜੋ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਤਾ, ਪਾਊਡਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ इसनू ड्रॉप वाइज उस टैंक के उपर फॉल करवाना शुरू करांगे जिहदे विच असी लैकोपोडियम नू स्प्रिंकल किया होया। ठीक है, तो की होएगा जिवें कि मैं पहला दस्सिया सी, जदों ही असी सोल्यूशन नू स्प्रैड करना फॉल करवाना शुरू करांगे ड्रॉप वाइज तो ही स्प्रैड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिहड़े उपर वाले मॉलिक्यूल्स ने वो फोर्स लगाएंगे तो वो डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच जाना शुरू कर देंगे। तो हौली हौली की होएगा, ऊपर अपर मॉलिक्यूल्स की फोर्स करके जिहड़ा सोल्यूशन है वो स्प्रैड होना शुरू हो जाएगा। कितनियां ड्रॉप्स पानियां ने, लेट अस सपोज तुसी एंड ड्रॉप्स ने जिहड़ियां वो फॉल करवाई, एंड ड्रॉप्स उत्थे फॉल करवाइयां जो कि असी लैकोपोडियम स्प्रिंकल किया होया है। तो उस एंड ड्रॉप्स फॉल करवाने ते उसकी लेयर बननी शुरू हो गई। ठीक है ना, हुण ऑलिक एसिड थिन लेयर बनाएगा। ठीक है, तो वो जिहड़ी लेयर है वो असी मान रहे हैं कि सर्कुलर शेप है। क्यों 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 होएगी सर्कुलर शेप? क्योंकि असी सानू पता है कि मॉलिक्यूल्स दे विच अट्रैक्टिव फोर्स है, कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे नू छड़ के नहीं जाना चाहेगा, वो एक दूसरे नू अट्रैक्ट करनगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सरफेस टेंशन घट होंदी है। सफीयर का जिहड़ा वो है लीस्ट है सरफेस एरिया, सो जिहड़ा भी मॉलिक्यूल है वो नियरली सफेरिकल सर्कुलर शेप नू अडॉप्ट करना चाहेगा। अगर नहीं भी सर्कुलर आंदी दैन ता भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिहदे करके एक मॉलिक्यूल दूसरे नू अपने वाल अट्रैक्ट करेगा, तां की होएगा हौली हौली इहदी जिहड़ी स्प्रैडिंग है वो लास्ट होंदी जाएगी, कंटिन्यू रहेगी, तो ये एक सरफेस के उपर एक लेयर बना लेगा, सर्कुलर लेयर। ठीक है, हुण असी की करना है, असी इस लेयर का एरिया कैलकुलेट करना है। इस लेयर के एरिया नू कैलकुलेट करन दे लई असी यूज़ करांगे ग्राफ पेपर मैथड। ग्राफ पेपर मैथड, ग्राफ पेपर सारिਆਂ ने देखा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बॉक्सेस बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ बॉक्स है ग्राफ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह बहुत स्मॉल बॉक्सेस बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ सिंगल बॉक्स है वो ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ mm² एरिया ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਅਮੰਗ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰਕੂਲਰ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਅਪਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 1 mm² ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, उसनू टैंक के उपर जो लेयर बन गई है उसके उपर इस तरह लगावांगे। ठीक है, लगाने तो बाद इस तरह उठा लांगे, तो की होएगा ऑयलिक एसिड थोड़ा जा स्टिकी मटीरियल हुंदा है, तो कुछ जगह ते उस ग्राफ पेपर ते वाटर लग जाएगा, जिवें आ वाटर लग गया कुछ जगह ते, तो कुछ जगह ते साडे कोल पैचेस आ जाएंगे।
मीनस वो स्टिकी ऑयली फॉर्म दे विच साडे कोल पैच आ जाएंगे। लेट अस सपोज तुहाडे कोल इस तरह का कोई पैच बन गया, क्योंकि एल्कोहल तो इवैपोरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई पैच बन गया तुहाडे कोल। तुसी ये टैंक है, टैंक के उपर थोड़े फिल्म बनी हुई है जो कि मटीरियल असी स्प्रैड किया है। ग्राफ पेपर में जस्ट वो उपर रखो तो इस तरह उठा लो, तो इस कई जगह ते थोड़े कोल वाटर लगेगा तो कई जगह ते थोड़े कोल इस तरह का कोई पैच बन जाएगा। हुण करना की है, जेड़े बॉक्सेस फुली कवर ने उन्होंने काउंट कर लो, जिमें आ फुल बॉक्स है इन्हां दी काउंटिंग कर लो। जे कोई बॉक्स मोर दैन हाफ कवर हो रहा है उसनों इंक्लूड कर लो, जे लैस दैन हाफ है तो डिस्कार्ड कर लो। तो बेसिकली तुसी करना की है, इस पैच जो कि थोड़े कोले पैच फॉर्म होया है, इस पैच दे अंदर किन्ने बॉक्सेस कवर हो रहे ने उन्हां दी काउंटिंग करनी है। जस्ट काउंट दैट बॉक्सेस, वो थोड़े कोल की आ जाएगा टोटल एरिया। लेट अस सपोज कि जो तुसी इन्हां बॉक्सेस दी काउंटिंग कीती ओदे तो कोई एरिया आया जिन्हों असीं नाम दिता कैपिटल ए। मीनस इस जो फिल्म साडे कोल बनी, जो पैच साडे कोल बनिया, उसका जिहड़ा एरिया है उसकी वैल्यू कितनी आई है, कैपिटल ए। हुण एक फैक्टर कैलकुलेट हो गया, मीनस थोड़े कोल एरिए की वैल्यू आ गई। नैक्सट तुसीं की कैलकुलेट करना है, जिहड़ा अपना फॉर्मूला देखो पिछे की सीगा कि जिहड़ा डायामीटर है ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल का दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। मीनस साडे कोल एरिए की वैल्यू आ जाएगी, इत्थों कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी क्योंकि एक्चुअली दे विच ये बॉक्सेस काउंट होंगे। तो मैंने उन्होंने नाम दिता सपोज कैपिटल ए का। नैक्सट स्टैप की है, नैक्सट स्टैप तुसी की कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि एंड ड्रॉप्स अगर असी इस सोल्यूशन दियाँ फॉल करवाइया तो उन्होंने कितना वॉल्यूम होएगा, वो असी देखते हैं हुण कि वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करना है। सो इत्थे तक असी कैलकुलेट किया कि जिहड़ा एरिया है उस ऑयलिक एसिड सोल्यूशन का वो असी किवें कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण नैक्सट असी कैलकुलेट करनी है दूसरी क्वांटिटी वॉल्यूम, ठीक। तो लेट अस सपोज जिहड़ा असी पहला वॉल्यूम दस्सिया सीगा कि मैं ब्यूरेट दे अंदर सोल्यूशन पाया तो कुछ एक फिक्सड अमाउंट लिए, लेट अस सपोज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर दे विच 100 ड्रॉप्स फॉल कर रही ने, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप कितना आएगा, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 10 अपॉन 100। क्लियर। सपोज करो, लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू कैपिटल V, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। हुण यह वॉल्यूम 1 ड्रॉप का है जिन्हों असी कैपिटल V लिखा है। तो असी कितनियां ड्रॉप्स फॉल करवाइया ने उस टैंक के अंदर, एंड ड्रॉप्स मैं स्टार्टिंग दे विच ही दस्सिया सी कि असी एंड ड्रॉप्स लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप्स कितना हो जाएगा, N इंटू V, क्योंकि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैपिटल V है, ठीक है ना। तो एंड ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप्स इज इक्वल टू NV, ठीक है, NV क्यूबिक सेंटीमीटर। हुण असीं की करना है, इस विच इन्ने वॉल्यूम दे विच असीं की कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड। क्लियर कि इन्ने वॉल्यूम दे विच साडे कोल कितनी अमाउंट है ऑयलिक एसिड दी, उसनों असीं कैलकुलेट करना है। तो असीं पिछे जो कैलकुलेशन कीतियां ने उहदे विच की दस्सिया सीगा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे विच कितने अमाउंट है ऑयलिक एसिड दी। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेन ऑयलिक एसिड, कितना ऑयलिक एसिड है, 1 अपॉन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन कंटेन ऑयलिक एसिड इज इक्वल टू दिस। तुसी किस तरह भी लिख सकते हो या इसको थोड़ा इजी वे ना लिखते हैं, इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इज इक्वल टू 1 अपॉन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हुण साडे कोल जिहड़ा सोल्यूशन है वो कितना है,
n into v cubic centimeter. So in nv cubic centimeter amount of oilic acid is equal to कितनी हो जाएगी nv multiplied by 1/400 cubic centimeter. Clear? So nv solution cubic centimeter solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ oilic acid ਦੀ ਇੰਨੀ means ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ nv upon 400. Clear? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ A ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ oilic acid molecule ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਈਟ that will be equal to volume upon area. ठीक है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ nv upon 400 cubic centimeter divided by area. area कितना कैलकुलेट कितना है कैपिटल A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनू जो कैलकुलेशंस करांगे की बनेगा nv upon 400 into A सेंटीमीटर। ठीक है तो जो साडे कोल डायमीटर आया मींस oilic acid दा उसदी वैल्यू कितनी आई diameter of oilic acid molecule nv over 400 into A centimeter. So A है आ गया साडे कोल diameter कैलकुलेट करन दा oilic acid दे molecule दा। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कैपिटल B है सॉरी ਇਹ थोने नंबर ऑफ ड्रॉप्स दसनिया ने कि किनिया स्प्रेड करवाइया उन्हां दा वॉल्यूम दसना है जो कि मैं तुहानू दस चुकी हाँ। ब्यूरेट दे विच डायरैक्टली तुसी सोल्यूशन नू फिल करना है किनिया ड्रॉप्स फॉल कर रही ने एक पर्टिकुलर फिक्सड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन दे लई ओदे तो तुहाडे कोल वॉल्यूम दी वैल्यू आ जाएगी। ते एरिया कैलकुलेट करन दे लई असीं यूज़ करना है ग्राफिकल मैथड ग्राफ पेपर वाला मैथड। ठीक है तो जो तुसी इन्हां वैल्यूज़ नू पुट करोगे तो तुहाडे कोल की आ जाएगा डायमीटर ऑफ oilic acid molecule ते यह किस रेंज आंदा है नियरली 10⁻⁹ मीटर की रेंज दे विच आएगा इज द डायमीटर। ठीक है देखो ये तो फॉर्मूला असीं ड्राइव कर लिया पर इत्थे एक क्वेश्चन अराइज हुंदा है कि तुहानू किद्दां पता लगेगा कि जिहड़ी असीं लेयर टैंक दे विच सोल्यूशन नू फॉल करवा के बनाई है वो एग्जैक्टली 1 मॉलिक्यूल ते आ गई है। ये भी तो हो सकता है कि 3 या 4 मॉलिक्यूल्स होन या उस तो भी ज़्यादा होवे तो उहदे लई की मैथड है कि तुसी 5 to 7 टाइम्स उसनू रिपीट करो। जो तुहाडे कोल लोएस्ट वैल्यू आ रही है एरिए दी उसनू रखो क्योंकि जिन्नी वारी ज़्यादा असी कैलकुलेशन करांगे तो जिहड़ी मिनीमम होएगी उसनू असी यूज़ कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि इस टाइम ते जिहड़ा लेयर है वो एग्जैक्टली 1 मॉलिक्यूल दी बन रही है। बट इस तो भी तुसी एग्जैक्ट गैस नहीं लगा सकते। किस तरह हो सकता है कि जो तुसी मिनीमम कैलकुलेट कर रहे हो वो 3 ਲਈ ਹੋਵੇ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 7 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲੀਸਟ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ HCF फाइंड आउट करते हैं जिमें 3 5 7 है उसका HCF कैलकुलेट करते हैं तो सेम प्रोसीजर तुसी इत्थे अडॉप्ट करना है कि जो भी तुहाडे कोल वैल्यूज़ आ रही ने जिन्ना वारी तुसी उस एक्सपेरीमेंट नू रिपीट किया है उसका HCF कैलकुलेट करो तो जो भी तुहाडे कोल आंसर आएगा लीस्ट आएगा उसनू तुसी यूज़ कर सकते हो और कह सकते हो कि यह जिहड़ा है वो 1 मॉलिक्यूल लई है जो लेयर है वो सिंगल मॉलिक्यूल लेयर है। सो स्टूडेंट्स ये सीगा साडा oilic acid मैथड टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ oilic acid मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स अज दे लेक्चर च असी डिस्कस किया पैरालैक्स मैथड
टू मैजर दी इनडायरैक्ट मैथड है जिन्हां नाल असी लार्ज डिस्टेंसिस नू मैजर कर सकते हैं। तो उस तो बाद असी अज का लैक्चर जो सी वो शुरू किया कि जे असी बहुत स्मॉल डिस्टेंसिस नू मैजर करना होवे उहदे लई असी कैलकुलेशन मैथड नू अडॉप्ट करके किद्दां कैलकुलेशनस कर सकते हैं। तो असी चूज़ किया ऑयलिक एसिड। तो मैं रीज़न भी दस्या सी कि रीज़न क्यों असी ऑयलिक एसिड लिता, क्योंकि बेसिकली असी ये मान रहे हैं कि जिहड़ा ऑयलिक एसिड है उहदा साइज़ है जिहड़ा वो थोड़ा जा बिग हुंदा है बाकी मॉलिक्यूल्स दे नालों, इसलिए जो मेजरमेंट करन दे विच थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इस करके असी ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल नू चूज़ किया। उस तो बाद असी स्टैप्स दसे ते प्रिंसीपल दस्या कि किस प्रिंसीपल के उपर बेस्ड है। सिंपल जो तुसी लोअर क्लासिस दे विच पढ़ते आ रहे हो कि वॉल्यूम की हुंदा है लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट, असी उसे प्रिंसीपल नू यूज़ करके इहदा एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि जिहड़ी हाइट है मीनस जिहड़ा डायामीटर है ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल का वो किहदे इक्वल होएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। सो सिंपलेस्ट की है असी की कैलकुलेट करना है, ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो जदों असी दोनों चीज़ों नू कैलकुलेट कर लांगे उस तो बाद असी डिवाइड करन तो बाद साडे कोल की आ जाएगा कि डायामीटर और हाइट ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। तो वो तो बाद ਇਹਦਾ एरिया कैलकुलेट करन दे लई थोड़ा जिहा असी यूज़ करते हैं ग्राफ पेपर मैथड नू। सिंपली तुसी एक ग्राफ पेपर नू टैंक जो असी सोल्यूशन बनाया उसके उपर रखना है, अल्कोहल की हो जाएगी इवैपोरेट हो जाएगी, जिहड़ा पैच है ऑयल का वो थोड़े ग्राफ पेपर के उपर रह जाएगा। तुसी एक बॉक्स नू असी मान के चलते हैं एरिया कितना हुंदा है 1 mm स्क्वेयर। सो नंबर ऑफ बॉक्सिस काउंट कर लेने ने किन्ने ने, जिन्हां दे हाफ कवर हो रहे ने वो लीव कर दो, ਜਿਹੜੇ हाफ तो ज़्यादा कवर हो रहे हैं उन्होंने अपनी काउंटिंग दे विच ऐड कर लो। तो सिंपली बॉक्सिस नू काउंट करके थोड़े कोल की आ जाएगा एरिया। इसी तरह वॉल्यूम कैलकुलेट करन दे लई ब्यूरेट दे विचों सोल्यूशन नू फॉल करवाना स्टार्ट करो। ठीक है, जदों ब्यूरेट दे विचों सोल्यूशन ड्रॉप वाइज फॉल हो रहा होएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ते किन्ने ml सोल्यूशन दे विच फिक्सड अमाउंट सपोज करो तुसी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन दे विच किन्नियां ड्रॉप्स आईयां उन्होंने काउंट कर लेना। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होएगा उन्होंने डिवाइड कर लेना है। जिन्नियां ड्रॉप्स तुसी उस टैंक के उपर फॉल करवाओगे, ठीक है, सपोज 10 ड्रॉप्स फॉल 100 ड्रॉप्स आईयां 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन के लिए, तो उहदे तो तुहानूं की पता लग जाएगा तुहाडा वॉल्यूम 1 ड्रॉप का। क्लीयर। सो इसनों यूज़ करके असी कैलकुलेट करांगे कि थोड़े ऑयलिक एसिड की उस वॉल्यूम दे विच कितनी अमाउंट है, उन्होंने एरिए दे नाल डिवाइड कर देंगे तो साडे कोल की आ जाएगी हाइट ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। क्लीयर। सो स्टूडेंट्स अज असी डिस्कस कर चुके हैं इनडायरैक्ट मैथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसिस। अगले लैक्चर दे विच मिलांगे जिथे असी डिस्कस करांगे अबाउट मास की मेजरमेंट किस तरह करनी है ते टाइम की। अज दे लई इन्ना ही, मिलते हैं अगले लैक्चर। थैंक यू।